Yeah, so today we will start with the backend. Backend we have already completed, so we will start with front end. Okay, so here I have just opened one front end folder. In that, I have just entered cd dot backslash front end, and now just open your what we call Chrome and search for shad cn backslash ui uh, whi- with white with it. Okay, so select this, and in that, so you can able to see the first command. So here we are using this. So just copy this and go to your job, and this job portal, select the front end one and select and do the copy paste here this command. So now it's taking some times. Yeah, it's asking me a project name, so I just want to create the project name with same. So I'm just entering it. So I'm just selecting the framework as a React, and I'm just selecting the this what we call variant as like a JavaScript. Okay, so there are so many options, but we will going to only select this JavaScript. Okay, uh, just a second. Yeah, so it's done, and now you can run this npm install, and now we can able to run this particular what you call project. Okay, so now we will go back to our thing, and we have already completed the first thing. So just copy this tailwind css and paste here, so it will install some packages, I think. Yeah, so you can see there are so many we can say in the public हमको node modules है public के अंदर एक SGV है like WIT का SGV and SRC के अंदर we can also see some assets के अंदर some files. Okay, so we won't change now. Okay, we will now copy this what we call at the rate import one, and go to index.css. Okay, just a second. Let me see where I need to. Yeah, I need to place it as index.css के यहाँ पे. I just want to import this. Okay, so yeah, I'm just importing it. So now move back, and I'm just copying this one. And I think we don't have a file with this dot config.js. कोई file नहीं है, तो we will create a file with the name of TSA. So we need to change. We not. I mean, here हमको JS से लिखना है, JS config.json, TS नहीं. So just change the T with the J. And ये जो आपको कोड दिख रहा है ना, you just copy here the code. आपको कॉपी करना एंड यहाँ पे जाके पेस्ट करना, और ये अननेसेसरी कोड निकाल देना, बस यहाँ तक आपको कोड ठीक से रहना है. ओके, आई वांट टू टेक अनदर फाइल. इसको भी हम JS से ही सेव करेंगे. सो मैं कॉपी करती हूँ, एक और फाइल क्रिएट करते हैं या विद द नेम ऑफ जे. ओके, एंड बाद में हम जाएंगे हमारे इसके अंदर. जस्ट लेट रन दिस. ओके, एंड उसके बाद हम जाएंगे. नाउ वी वोंट यूज दिस npm इंस्टॉल स्लैश डी वाले हम यूज नहीं करेंगे. वी विल गो विद दिस पाथ विट हमने इंस्टॉल किया था ना. जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू दैट विजुअल स्टूडियो. ओपन दिस, एंड ये रहा मेरा विट डॉट कॉन्फिग के अंदर पूरा कोड निकालती हूँ, ये वाला कोड डालती हूँ. एंड बाद में now we want to run this command on the terminal, right? So it's running. Yeah, so I just want to keep the basic color as neutral. So it's asking me some dependency. Just click on enter. It's taking some time, guys, until that wait.
ओके, सो इट इज़ कंप्लीटेड। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट? सो हम ये सब देख सकते हैं। लाइक जस्ट अ सेकंड, मुझे यस सर, लेट मी डिलीट दिस एंड लेट मी ऐड once again। मुझे ये भी डिलीट कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। सच में मुझे एसआरसी के अंदर कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे। ओके, सो ये वाला फाइल भी रिमूव कर देती हूँ, कंपोनेंट वाला, तब ये काम चलेगा। ओके, नाउ लेट्स एंटर इट। या इट्स आस्किंग मैं न्यूट्रल में क्लिक करती हूँ एंड उसके बाद वुड यू लाइक टू प्रोसीड। मुझे यहाँ पे चाहिए था, आई डोंट वांट इन सेपरेट फाइल। अभी देखेंगे कि कहाँ क्रिएट होता है। ओके, इस लाइब्रेरी के अंदर जस्ट अ सेकंड, मैं एक काम करती हूँ until that। हाँ या गाइस, सो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मेरा एसआरसी एक अलग से एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ था, तो मुझे अलग से एसआरसी नहीं चाहिए। तो मैंने एसआरसी के अंदर जो भी थे ना, लाइव के अंदर ये क्या बोलते हैं, ये utils.js का था ना, तो ये सब मैंने एसेट्स के अंदर एक फ़ोल्डर यहाँ पे जाना, एसेट्स के अंदर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना एंड उसको लाइव से सेव करना एंड इसके अंदर एक और न्यू फाइल से लेना एंड उसको यूटिल से सेव कर लेना। ओके, सो नाउ वी विल रन द बटन वाला कमांड रन करेंगे अभी। ओके, सो नाउ लेट्स पेस्ट दिस वन। Yeah, it's loading, just click on enter। या मुझे फिर से एक और ऐसे क्रिएट हुआ था, मुझे वैसे एसआरसी 2 एसआरसी नहीं चाहिए, डुप्लीकेट एसआरसी। सो लाइक ऐसे अगर 2 एसआरसी अगर क्रिएट करते हैं तो हमको बीच में एरर्स आते हैं। तो इसी के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक और फ़ोल्डर बना देती हूँ विद कंपोनेंट्स करके एक नाम डाल देती हूँ। ओके, सो इससे क्या होता है, मतलब अगर आप 2 डुप्लिकेट्स डालते हो ना, तो व्हाइल कॉलिंग आपको कंपाइलर को लाइक एरर आ जाता है कि यहाँ तो 2 फ़ोल्डर से मैं कहाँ से लूँ करके। सो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम ये जो बटन जो डेस्क है ना, इसका पूरा कोड कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पे कंपोनेंट्स के बाद यहाँ पे क्लिक ऑन न्यू फ़ोल्डर एंड यहाँ पे जाना एंड क्लिक ऑन button.jx ओके एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड ये जो आपको दिख रहा है ना अभी, ये पूरा इसको डिलीट कर देना। ओके, सो इसको डिलीट कर दो, बेस्ट है। जो डुप्लीकेट आई मीन या, सो नाउ इट इज़ कम्प्लीटली रेडी। अभी हम एक कंपोनेंट के अंदर ये सब हो गया था ना। ओके, सो नाउ इट इज़ जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे वेट अ सेकेंड, मुझे एक और कंपोनेंट डॉट जेएस का फाइल मिला। ओके, सो दिस आर एवरीथिंग इज करेक्ट। सो अभी मैं क्या करूँगी, एक कंपोनेंट के अंदर एक वेट अ सेकेंड, इसको क्या करूँगी, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर एक यूआई करके डालूंगी। ओके, एंड ये जो कंपोनेंट के अंदर यूआई जो था ना, उसके अंदर मैं बटन डाल देती हूँ। सो जो भी हमारे यूआई के अंदर बटन ये क्या बोलते ये सब रहेंगे, तो ऐसे क्रिएट करना अच्छा है। और यहाँ से पूरा एंटर जस्ट लेट मी टेक अ सेकेंड, ये कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ।
ओके, सो यहाँ से मैं अभी निकाल देती हूँ। सो फिलहाल मुझे डुप्लीकेट्स फाइल कंसिस्ट नहीं करना है। सो आप भी प्लीज़ ऐसे डिलीट कर लेना। आपको डायरेक्टली नॉर्मली आता है तो प्लीज़ वो ही रखना। ओके, सो अभी बिफोर स्टार्टिंग, अभी हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देखेंगे कि ये कैसे रन हो रहा है। आई मीन npm रन डेफ से लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। आई थिंक ये मेरे लोकल होस्ट में आएगा। या 73 पे रन हो रहा है। क्लिक ऑन दिस लिंक। या हमको अभी दिख रहा है जैसे हम रिएक्ट के क्लासेस में पढ़े थे ना, सेम यूज इफेक्ट यूज स्टेट से ही हमको आ रहा है। एंड द मेन फाइल इज लाइक एपी ऐप डॉट जेएस है। ओके, सो ये हमारा मेन फाइल है। इसी के अंदर आप कुछ भी चेंजेस करते हो ना तो वो सब आपको वहीं पे मिलता है। बिफोर दैट हम एक काम करेंगे। मेन डॉट जेएस से अंदर जाएंगे और या ऐप डॉट जेएस के अंदर जाएंगे, नॉट मेन डॉट जेएस। यहाँ पे देखना, ये पूरा आपका एंटायर कोड दिख रहा है ना, ये पूरा एंटायर कोड हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमको वैसा नहीं चाहिए था। ओके, एंड इसके अंदर भी ये जो यूज स्टेट ये सब निकाल देंगे। एंड बाद में ये जो आपको कॉन्स्ट काउंट ये सब दिख रहा है ना, ये भी हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो नाउ वी विल क्रिएट हियर एक डिफ बनाएंगे यहाँ पे। सो एक डिफ से अच्छा एक हेडिंग टैग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। मीन्स कुछ अगर हम एंटर कर रहे तो ओके, सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ लेट्स बिल्ड जॉब पोर्टल करके डाल रही हूँ इसके अंदर। ओके, सो अभी देखेंगे कि कैसे रन हो रहा है करके। या ये तो ऐसे दिख रहा है। ओके, सो ये तो नॉर्मली दिख रहा है। तो मुझे अगर अभी इसको कुछ कलरिंग डाल देती हूँ इसका। सो इसके लिए मुझे लाइक क्लास नेम इज इक्वल्स टू जस्ट अ सेकेंड, टेक्स्ट जो था ना इसका रेड करेंगे। आई मीन रेड कलर में हमको चाहिए था ना तो उसको 500 डाल देंगे। ओके, सो पूरा ये सब क्लियर है। सो अभी देखेंगे कैसे। सो ये रेड कलर में दिख रहा है। सो अगर अब ये ओपन कर रहे तो ओके, तो ये था हमारा पूरा। बिफोर दैट हम एक बार ये जो ऐप डॉट सी एस एस के अंदर था ना, ये पूरा कोड हम निकाल दे देंगे। अभी देखेंगे कि ये यहाँ पे रन हो रहा है। ओके, गुड। सो चेंज ये सी एस एस हम ओन में से बिल्ड करेंगे। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक अच्छे से एक नैव बार बनाएंगे। ओके, एंड उसके अंदर हम कुछ क्रिएट करेंगे। लाइक हमको जॉब पोर्टल करके आएगा एंड होम ब्राउज़र ये सब भी हमको चाहिए ना, तो ये सब हम नैव बार के सहायता से हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब ये जो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। उस फ़ोल्डर का नाम रहेगा शेड करके डालेंगे। सॉरी, यहाँ शेड करके। ओके, एंड इसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर लाएंगे, एक नैव बार करके, नैव बार डॉट जे एस एक्स करके। ओके, ये जो हमने शेड क्यों डाला, क्योंकि ये शेयरेबल है कि हम सब फाइल के अंदर ही यूज़ करेंगे इसको। तो इसके बाद यहाँ पे भी मुझे आर ए एफ सी ई करके डालना है। एंटर करती हूँ एंड यहाँ पे देखना, मुझे एक डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट मिल गया है रिएक्ट जेएस का। एंड ये आपको कैसे मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन के अंदर जाना। आप यहाँ पे ES7 जस्ट अ सेकेंड, या ये जो आपको फर्स्ट वाले दिखता है ना, ये सेकेंड प्लस रिएक्ट, ये आपको क्या बोलते हैं इंस्टॉल करना है, क्योंकि इससे आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोड आपको दिखता है कि क्या आप रन कर रहे हो करके। नॉट द ओरिजिनल कोड आपको नहीं मिलता है। इसको इसके अंदर आपको लाइक आपको ये कोड चाहिए करके ऐसा दिखता है। ओके, तो अभी अभी क्या करेंगे, मतलब ये जो डिव है ना, इसका बैकग्राउंड हम करेंगे। ये क्लास नेम इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड हम जाएंगे वाइट में डालेंगे। एंड उसके बाद मैं एक H1 लेती हूँ हेडिंग टैग। ओके, सो इसके अंदर मैं जॉब डालती हूँ एंड एक और स्पैन डालती हूँ।
स्पैन के लिए एक पोर्टल डालती हूँ कि कलर चेंज करने के लिए। ओके, सो अब एक बार रन करके देखते हैं। ओके, ये अभी मुझे नहीं शो होगा क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया था ना, ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने इंपोर्ट नहीं किया था। तो अभी हम ऐप डॉट जेएस के अंदर हमें इंपोर्ट करना है। सो बिफोर दैट हम एक बार, एक मिनट, यहाँ पे मुझे वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जाके एंटर करना है एंड यहाँ पे मुझे nav बार लिखना है। ओके, सो nav बार, जस्ट अ सेकेंड, nav बार मेंशन करती हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट nav बार कहाँ से इंपोर्ट होगा, ये कंपोनेंट से इंपोर्ट होगा। ओके, ये जो हमारे यहाँ पे क्रिएट किया था ना कंपोनेंट्स के अंदर, शेड के अंदर से हमको ये nav बार रन होगा। सो यहाँ पे देखना आपको जॉब पोर्टल करके मिल रहा है। ओके, तो फिर से जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, लाइक ये जो H1 था ना, ये पूरा हम डिलीट कर देंगे। फिलहाल इसकी तो हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार nav बार में जाएंगे एंड इसको कंप्लीट करेंगे कि इसको कुछ ये जो जॉब दिख रहा है ना, इसको क्लास डालेंगे एंड इसको लाइक सम फॉन्ट ऐड करेंगे एंड इसके अंदर मुझे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डालती हूँ। टेक्स्ट का आ जाएगा टेक्स्ट 2XL एंड इसको बोल्ड में करना चाहती हूँ। फॉन्ट इज इक्वल्स टू, आई मीन फॉन्ट बोल्ड डालती हूँ। ओके, सो एक बार देखेंगे कि वर्क हो रहा है या इट्स वर्किंग। सो अभी मुझे ये जो पोर्टल है ना, इसको कुछ एक और कलर देना है। सो उसको कलरिंग कहाँ पे देना है, सो ये जो इस पे जॉब वाले के इसके अंदर मुझे एडिट करना है। तो इसके लिए मुझे कलर डालने के लिए जस्ट एंटर। ओके, एक टेक्स्ट करके डालेंगे एंड टेक्स्ट के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हैश F8 एंड F83002 करके मैं मेंशन कर रही हूँ और यहाँ पे हमने पोर्टल क्लोज कर दिया था। एक बार देखेंगे कि कैसे कलर आ रहा है। just a second, refresh while it's not working. हमने तो ठीक ही डाला था। या सो नाउ इट विल, सो देखना यहाँ पे रेड कलर से हमको चेंज होके आ गया है। ओके, सो देख सकते हो दिस इज जॉब एंड दिस वन इज अनदर कलर, राइट। सो हम विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे। नाउ वी विल क्रिएट वन मोर div, ओके, एंड उसके अंदर ये हमारा हेडिंग टैग आएगा, आई मीन दिस जॉब पोर्टल आएगा, राइट। एंड ये मेरा नाउ इट इज गुड एंड इसको मैं डिलीट कर देती हूँ फिलहाल के लिए। ओके, एक मिनट। ओके, सो एवरीथिंग इज गुड। नाउ एक और आई विल क्रिएट वन मोर div। ओके, सो लाइक राइटिंग पार्ट के लिए मैं एक div बनाना चाहती हूँ। ओके, सो एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करती हूँ कि कोड अच्छे से दिखेगा। ये यहाँ पे था एंड यहाँ पे यूएल बनाऊंगी एंड इसके अंदर एक लिस्टिंग आइटम डाल लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। सो यहाँ पे मुझे एक होम डालती हूँ। ओके, आई थिंक, सॉरी, या होम का जो था ना, शिफ्ट प्लस आल्ट करके मैं 3 डाउन वाले से ले रही हूँ। सो रादर देन राइटिंग ऑल द टाइम। सो एक होम्स आएगा, एक जॉब आएगा और एक और ब्राउज करके आएगा। ओके, ब्राउज करके डाली हूँ मैं। एंड बिफोर दैट अब एक बार हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे। हमारे टर्मिनल के अंदर हमें कुछ चीज़ें डालनी है कि हमें ये क्या बोलते हैं, एक लिंक का एक ऐड करना ना, तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करना डिपेंडेंसीज, लाइक npm i करके डालूंगी एंड वॉट एवर द हमको चाहिए वो डालती हूँ। यहाँ पे मैं रिएक्ट, एक मिनट, रिएक्ट राउटर
एंड बाद में डूम। एंड मुझे एक और ऑक्सेस चाहिए। ओके, ये एपीआई इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। एंड मुझे उसके साथ रेडेक्स भी चाहिए। तो एट द रेट हम रेडेक्स का हमारा नेक्स्ट मंथ का है, तो मैं आपको बताऊंगी रेडेक्स कैसे काम होते हैं। ओके, मैं एक टूल किट डालती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे डॉट नेट डाला था, या अभी ठीक रहेगा। ये टूल किट डालती हूँ एंड इसके अंदर एक रिएक्ट एंड यहाँ पे एक राउटर डालती हूँ। सॉरी सॉरी, रेडेक्स डालना है, नॉट राउटर। ओके, अभी मुझे एंटर करना है। सम पैकेजेस विल बी इंस्टॉल यहाँ पे। ओके, पूरे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। सो या पूरे पैकेजेस हमको मिल गए। सो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली एक डालती हूँ इंपोर्ट। मुझे क्या डालना था अभी, लाइक जस्ट अ सेकेंड, लिंक से अच्छा हम क्या बोलते हैं, लिंक अभी फिलहाल के लिए लिंक अभी नहीं डालेंगे। मुझे एक मिनट क्रॉस करती हूँ, या एक बार ओके लिंक क्रिएट कर देती हूँ, उससे अच्छा कि आपको पता चले कि कैसे यूज़ होता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिंक फ्रॉम करके डाली एंड यहाँ से रिएक्ट राउटर से अब एक बार देखते हैं कि हमारा रन होता है कि नहीं। सो यहाँ पे देख सकते हो कि होम जॉब ये सब यहाँ पे हमको आ रहा है। सो हमको यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे लाइक राइट साइड में आना है। तो उसके लिए एक मिनट, मैं एक मिनट। सो नाउ या मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सो ये सब तो हमारा आ गया था, इसका आउटपुट मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कैसे दिखेगा ये। राइट, वंस अगेन ओके, इट्स नॉट ओके npm। सो या ये क्या एरर शो कर रहा है, वेट अ सेकेंड। विजुअल स्टूडियो के अंदर वेट अ सेकेंड व्हाई दिस काइंड ऑफ एरर। हमने तो सभी हमने किया था आई थिंक। जस्ट अ सेकेंड, मुझे शायद सो गाइस मुझे लाइक आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है कि स्टार्टिंग से, तो मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ कि कैसे कैसे काम होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप एक काम करना। सो हमने यहाँ तक लिंक तक तो देखा था, ये पॉप ओवर का मतलब मैं बताती हूँ उसको। सो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ तक तो हमने यहाँ पे एक काम करना हम। सो व्हाट वी विल डू, मतलब ये देखना यहाँ पे हमने एक डिफ बनाया था एंड इसके अंदर ये पूरे फ्लेक्स सेंटर ये सब डालेंगे। तब ये ब्राउजर ये सब हमको वी कैन एबल टू सी हियर लाइक होम जॉब एंड ब्राउजर करके इसको थोड़ा स्टाइलिंग ऐड करके हमको यहाँ तक मिलेगा। ओके, सो वी हैव एडेड। आपको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, मतलब कोड आई विल टेल यू। ये यहाँ तक आपको पूरा ऐड करना है एंड मैं अभी यूजर्स के बारे में बताऊंगी कि ये यूजर क्या होते हैं एंड व्हाट आर द थिंग। इससे पहले हम एक काम करेंगे। सो यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अभी एक या सो यहाँ पे एक पॉप ओवर करके ओपन करना एंड उसके अंदर आप पॉप ट्रिगर करके डालना। ओके, ओपन ये पॉप ट्रिगर ओपन करने के बाद इसके अंदर पॉप ट्रिगर डालो एंड यहाँ पे एक अवतार लेंगे। सो इस अवतार का मतलब ये अवतार हमको कहाँ से आएगा, मतलब यहाँ पे शैट सीएन के अंदर जाओ और यहाँ पे डायरेक्टली आप अवतार शैट सीएन डालोगे तो आपको ये ओपन होगा। एंड ये जो आपको लिंक मिलता है इसको कॉपी करना, डायरेक्टली कॉपी करो एंड यहाँ पे आपके टर्मिनल में पेस्ट कर लेना। तो हमारे जो क्या बोलते हैं यूआई था ना, उसके अंदर हमको एक अवतार ऐड हो जाएगा। ओके, तो अगर हम कभी भी यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पे अवतार के अंदर एक आई मीन ये यूआई के अंदर अवतार ऐड हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें एक और पॉप ओवर भी हमको चाहिए था। ओके, सो पॉप ओवर भी अभी हम इंस्टॉल करेंगे।
पॉप ओवर, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो मुझे लाइक पॉप ओवर, ये देखो यहाँ पे पॉप ओवर जो आपको मिल रहा है ना, वो क्लिक करना। सेम इसका भी एक जस्ट कॉपी करना है यहाँ पे लिंक से, एंड फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो आपको भी एक बटन के यहाँ पे देखना पॉप ओवर डॉट जेएक्स करके आपको मिलेगा। ओके, राइट। सो अभी हम पॉप ओवर की चीज़ें लिखेंगे कि कैसे पॉप ओवर किस ले करके। वेनेवर आप जब भी ये देखें, यहाँ पे एक वेबसाइट है, सो अगर यहाँ पे कोई भी इफ यूजर करके क्लिक करेगा तो ये ऐसे आने चाहिए करके मैंने यहाँ पे शो किया था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मतलब एक पॉप ओवर डालेंगे, पॉप ओवर ट्रिगर डालेंगे, इसके अंदर जो हमारा अवतार था ना, वो अवतार क्लास नेम डालेंगे, एंड इसको कर्सर पॉइंट डालेंगे। एंड ये जो यहाँ पे अवतार इमेज था ना, जस्ट सेकेंड, मेरा अवतार कहाँ गया था? ये देखना, ये देखना, ये जो आप सेलेक्ट कर लेना ये ब्लॉक ऑफ कोड को, और यहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं तो आई थिंक या वहाँ पे डाल देना। एंड अगर किसी को नहीं आता है तो सेम ऐसे कोड लिख लेना। ओके, सो ये आपको मिलेगा मेरे क्या बोलते हैं, गिटहब में मैं पोस्ट करूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से ले लेना। एंड फिर उसके अंदर हम डालेंगे कुछ डिटेल्स। सो यहाँ पे यहाँ तक तो एक पॉप ट्रिगर हो गया, तो ये अवतार के अंदर आएगा, इसके अंदर हमने एक अवतार इमेज डाला था। पॉप कंटेंट के अंदर हम क्या डालेंगे, इसको क्लास नेम देंगे, एंड div का जो क्लास नेम है उसको लाइक फ्लेक्स गैप करके डालेंगे। ओके, तो ये वाई रेडियस से टू डिस्टेंस 2 यूनिट स्पेस लेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अवतार जो क्लास नेम था ना, तो उसको ये कर्सर पॉइंट आएगा। सो कर्सर पॉइंटर मतलब व्हेनेवर हम उसको क्लिक करते तो हमारा माउस लाइक ऐसा हो जाता है। देखना आपको अभी मेरा जो CRLF जहाँ दिख रहा है ना, वैसा आएगा। सो उसके अंदर यहाँ तक तो हमारा हो गया। अभी हम एक और डिव लेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्लास नेम लेंगे, यहाँ पे क्लास नेम लेंगे, एंड इसको ये सब ये जो हमको अभी अवतार एक और इमेज था ना, वो इमेज यहाँ पे एक डिव के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे एक डिव के अंदर एक अवतार आना चाहिए, और ये पॉप ओवर के अंदर एक अवतार आना चाहिए। सो हम ऐसे मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद ये यहाँ पे एक डिव के अंदर मैं H4 लिख रही, आई मीन आई विल मेंशन, एंड यहाँ पे मेरा नाम लिखूंगी श्री पद्मा करके। एंड उसके अंदर कुछ पैराग्राफ मैंने लॉरम 3 करके लिखा था, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक डिफ, ये वाला डिफ क्लोज कर दिया। ओके, एंड ये वाला जो डिफ था ना, ये क्या बोलते, इमेज अवतार वाला इमेज था, अवतार के बाजू में ही, आई मीन उसके पास हमको ये मैटर मिलेगा। तो ये दो डिफ मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए थे। ओके, एंड अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब एक डिफ क्लास क्रिएट करेंगे फिर से। एंड वहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लेक्स कॉलम करके सम गैप लेंगे। ये माई आई मीन WY का मतलब मार्जिन है, तो मार्जिन हम 2 लेंगे। सो बाद में इसको क्लास नेम डालेंगे। एंड यहाँ पे एक व्हेनेवर कोई भी हम पॉप ओवर ओपन करते हैं, तो इसके अंदर मुझे एक यहाँ ये वाला डिव के अंदर, तो ये वाला मेरा क्रिएट हो गया था यहाँ तक। अभी मुझे ये व्यू प्रोफाइल ये सब क्रिएट करना था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना अभी, ये देखना डिव क्लास नेम करके। सो इसको ये ओपन कर लेना, एंड यहाँ पे यूज़र 2 डालना। ये यूज़र 2 का मतलब ये इमेज है। ओके, अगर आपको किसी को डाउट्स अगर फेस हो रहे तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर लेना, और आप ये कोड भी सेम कॉपी पेस्ट करते तो आपको एरर्स नहीं आते हैं। ओके, यहाँ पे एक मैंने बटन क्रिएट किया था बाजू में, कि इसको लिंक करके मैंने मेंशन किया। यहाँ पे मैंने लिंक भी डाला, पॉप ओवर डाला, बटन डाला, और ये अवतार डाला था, और लॉग आउट, और ये यूज़र 2 के फ्रॉम, ये मैंने यहाँ से ले रही करके मैंने इंपोर्ट कर दिया था। तो प्लीज़ ये इंपोर्ट भी आप ठीक से देखना। ओके, एंड उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ तक तो हमारा लॉग आउट हो गया था। तो ये पूरा पॉप ओवर कंटेंट के अंदर आएगा, जो ट्रिगर के अंदर हमको सिर्फ इमेज आएगा। ओके, नाउ इट इज एवरीथिंग इज नाउ गुड। सो ये था हमारा पॉप ट्रिगर। अभी इसको क्लिक करेंगे, ये पूरा जो देख रहे हो ना, ये पॉप ओवर कंटेंट है। ओके, तो अभी इसके अंदर हमने पूरे कंटेंट तो डाल दिया था। ओके, ऐसे इमेज चाहिए, आप मेरा नाम चाहिए, यहाँ पे छोटा मेरा पैराग्राफ चाहिए, एंड इसके बाद व्यू
प्रोफाइल के लिए एंड लॉग आउट के लिए हमने एक सिंबल्स भी ऐड कर लिए थे। ओके, ये हमने बटन्स क्रिएट कर लिए थे। तो यहाँ तक तो हमारा पॉप ओवर कॉन्टेक्ट हो गया था। एंड यहाँ पे हम पॉप ओवर क्लोज कर देंगे एंड इसके बाद डिव भी अच्छे से क्लोज करना एंड लास्ट में आप नैव बार जस्ट आई मीन क्या बोलते, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना, क्योंकि आपको क्या बोलते कोड जो था ना वो पूरा हमको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अच्छे से हो जाएगा। सो एक बार हम ऐप डॉट जेएस के अंदर जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। या सो ये मेरा जो ऐप डॉट जेएक्स है ना, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ नैव बार का ही डाला था। अभी इसके अंदर आप देख सकते हो कि लॉगिन साइन अप ये होम क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सो पहले आप ये जो आपको दिख रहा था ना, ये मेंशन कर लेना कि आपके यूआई के अंदर अवतार बटन एंड ये दोनों मेंशन होने चाहिए एंड ये पॉप ओवर भी। ओके, एंड ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब हम इंस्टॉल करेंगे बाद में, फिलहाल तो ये दोनों हमको चाहिए थे, तो आप टर्मिनल से इंस्टॉल कर लेना वो चीज़ें। ओके, नाउ अभी हम जाएंगे, वेट अ सेकेंड, ये अभी नाफ बार में जाएंगे। अभी नाफ बार के अंदर अभी हम एक चीज एक यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू ट्रू करके, मतलब हमको अवतार दिखेगा। अगर हम इसको यहाँ पे फॉल्स डालेंगे, ओके, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्टली जस्ट अ सेकेंड, या सो अभी यहाँ पे हमने फॉल्स डाल दिया, तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा पॉप ओवर, ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये पॉप ओवर जो पूरा ये दिख रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक पूरा ये हाइड में चला जाएगा। ओके, ये आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं ना, वो अभी देखना, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपको ये भी नहीं दिखेगा लॉगिन एंड साइन अप। ये अभी हम इसके बात करेंगे कि लॉगिन एंड साइन अप हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड वो कैसे यूज होते हैं। ओके, तो तो यहाँ पे मैं यूआई के बाद एक और कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगी एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे यूजर आई मीन हाई यहाँ पे देखना एक्स्ट्रा मार्क डाल के यूजर डालूंगी। यहाँ पे फुल स्टॉप, मतलब अगर यूजर करेक्ट है तो ये आई मीन क्या बोलते हैं, यूजर अगर नॉट इक्वल्स है तो ये दोनों डालना करके। तो इसके अंदर हम एक डिव क्लास क्रिएट करते हैं एंड वो डिव क्लास के अंदर हम एक फ्लेक्स आइटम सेंटर करते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमने एक लिंक का एक ऑप्शन क्रिएट करके स्लैश लॉगिन डालेंगे, ये बटन है एक्चुअली। ओके, तो इस बटन का हम आउटलेट डाल के, एक लॉगिन बटन है, एक साइन अप बटन है। ओके, तो इसको साइन अप कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे देखना, ये भी सेम हम साइन अप डालेंगे, बटन का क्लास नाम डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड कलर डाला था इसको, नॉर्मली साइन अप कलर का एक बैकग्राउंड कलर डाला था। सो आप कुछ भी सेम नंबर भी डाल सकते हो, और आपको कुछ कलर्स के नंबर्स आप डायरेक्टली स्टाइल डॉट सी एस एस क्या बोलते हैं फॉन्ट आई मीन कलरिंग कोड करके सर्च करते हो तो आपको गूगल में आपको मिलते हैं, सम कोड्स लाइक कोड्स में रहते हैं। सो नो नीड टू रिमेम्बर, आपको वो नाम लाइक याद करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जाके देखना कौन सी कलर आपको पसंद आती है, उस कलर का कोड ले लेना एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, ये बैकग्राउंड कलर या मैंने ये सम पर्पल करके मैंने मेंशन किया था। ओके, एंड कभी भी अगर वो यूजर पे लॉगिन पे आई मीन साइन अप पे क्लिक कर रहा है, तो होवर कर रहा है, तो उसका हम कलर चेंज करेंगे करके यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। राइट, सो यहाँ तक तो मेरा पूरा कोड हो गया था। अभी मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर जाऊंगी एंड रिमाइनिंग ये साइन लाइक लॉगिन कैसा होता है, ये साइन अप कैसा होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, अभी ये क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे यूज़र अगर हमारा यूज़र लॉगिन ऑलरेडी लॉगिन पे, तो अगर हम यहाँ पे ट्रू करेंगे तो ये जो यूज़र था वो ट्रू है करके, तो आपको डायरेक्टली अवतार वाला दिखेगा, मतलब पॉप ओवर जो आपको दिख रहा है ना वो दिखेगा। अगर यूज़र जो था वो अगर फॉल्स है तो आपको पूरा ये लॉगिन जैसे दिखेगा। राइट, सो दिस आर द थिंग। तो हमने फ्रंट एंड के अंदर ये फर्स्ट पेज के अंदर हमने किया था। अभी कोई मेरे अंदर आएगा एंड ये जब भी अगर ये बटन को क्लिक करता है तो उसके अंदर साइन अप एंड साइन इन लॉगिन एंड साइन अप का पेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट वी विल गो विथ ऐप डॉट जेएक्स के अंदर जाएंगे एंड जो आपको दिख रहा है ना ये नैव बार, सो इसके अंदर आप ये डाल देना कि ये लोग लॉगिन है साइन अप कैसे आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो इससे पहले आपको
क्या बोला या जस्ट अ सेकेंड। आप ये लॉगिन, ये इंपोर्टिंग आप बाद में करना, पहले ये जो आपको कोड दिख रहा है ना, कॉन्स्ट ऐप राउटर, ये आपको एंटर करना है, राइट। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो इसका पाथ मैंने बैक स्लैश करके डाला था। एंड यहाँ पे एलिमेंट मैंने होम डाला। एंड उसके बाद फिर से एक लॉगिन डालती हूँ। एंड बाद में यहाँ पे देखना एक और पाथ साइन अप करके मैंने मेंशन किया था। ओके। एंड इसको यहाँ पे मैंने फंक्शन ऐप करके डाला, उसके अंदर मुझे रिटर्न करना है। सो राउटर प्रोवाइडर, राउटर इज इक्वल्स टू ऐप राउटर करके मैंने यहाँ पे डाला है। ओके। सो अभी हम जस्ट अ सेकेंड, अभी मुझे यहाँ पे पैकेजेस वो सब इंस्टॉल करना है। वो कैसा इंस्टॉल करना है मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप एक क्या बोलते हैं, वेट सेकंड, या ये जो आपको यूआई था ना, यहाँ पे आप जस्ट एक न्यू फाइल करके क्लिक करना। एंड इसके अंदर आप होम डॉट जेएक्स करके लिखना। जस्ट सेकंड, मुझे ये नैव बार एक बार ये सेलेक्ट करना है। एंड आपका जो यूआई था ना, उसके अंदर एक फाइल डालो। ओके ओके, रादर देन दिस ऐसा मत करना इसको, अगर आप आई थिंक आपको एरर आएंगे। तो इसके अंदर क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपको कंपोनेंट्स के अंदर आप एक फाइल बनाना, ऑथेंट करके डालना उसका नेम। एंड उसके अंदर आप एक क्या बोलते, लॉगिन डॉट जे एक्स करके एक नाम डालना। एंड साइन अप डॉट जे एक्स करके एक नाम डाल देना। ओके। सो आप ऐसे सेव करना, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि कैसे सेव करना है कि क्या करके। अभी ये होने के बाद अभी हम एक जो यूआई था ना, तो यहाँ पे हम एक होम डॉट जेएक्स करके एक फाइल डालेंगे। ओके, ये यूआई के अंदर। ओके। तो अभी जस्ट अ सेकंड, या ओके। तो अभी मुझे ये कैसे क्रिएट की थी मैंने, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स में क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फाइल करके मेंशन करना। तो यहाँ पे आप होम डॉट जेएक्स करके लिखना। ओके। सो आपको जैसे ही होम डॉट जेएक्स का आप एक फाइल क्रिएट करते हो, एंड उसके अंदर आपको मेंशन करना है कि आर एफ सी ई करके मेंशन करना, एंटर कर देना। तो आपको पूरा जो डिफॉल्ट कोड है ना वो आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, आर एफ, ये देखना जैसे मैंने मेंशन किया तो आपको देखना डिफॉल्ट कोड आता है। सो ये इस डिफॉल्ट कोड को आप यहाँ पे ऑलरेडी एक नैव बार करके करना। ओके। यहाँ पे इंपोर्ट करो पहले, तो आपको इंपोर्ट करने के बाद आपको ये नैव बार करके शो करेगा। ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब जस्ट अ सेकेंड, ये तो होम वाला, ये होम पेज हो गया था हमारा। अभी हम जाएंगे जो था हमारा ऑथेंटिक का आ गया, ऑथेंट वाले के अंदर पूरा अभी लॉगिन का जो था ना, लॉगिन का कोड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको लॉगिन के कोड बताती हूँ कैसे काम होते हैं, ये क्या है करके। सो यहाँ से अभी हम पहले एक रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट करेंगे। सो यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट से लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे मुझे रन करने की ज़रूरत है। Yeah, so now we will continue with the login part. So ये login से पहले हम sign up करेंगे. So just a second. साइन अप करेंगे। सो साइन अप के अंदर ये क्या है, ये सब देखेंगे। या सो यहाँ पे हमने साइन अप के लिए लिया था। एंड हम ये सब कोड आपको जो दिख रहा है ना, वो सब आप कोड आप टाइप करना। सो ये सब आपको जब जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ये दिखना, यहाँ पे मैंने यूआई रेडियो, ये जो रेडियो ये सब डाला था ना, ये सब मेरे यूआई के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट्स रनिंग। सो जो भी आप बाजू में मेंशन कर रहे हो वो है कि नहीं आपके पर्टिकुलरली फाइल में, वो मेंशन कर लेना। ओके। मेरे अंदर सभी आई मीन एवरीथिंग इज करेक्ट। तो ये सब मैंने इंपोर्ट कर लिया था। मैं आपको बताऊंगी बीच में कि कैसे इंपोर्ट करना है। तो पहले यहाँ पे साइन अप के अंदर कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे।
तो पहले तो सिंपल जस्ट क्लिक दैट इंपोर्ट रिएक्ट, ये जो यूज स्टेट एंड ये निकाल लेती हूँ आपको एक अच्छे से रहेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, इट्स प्रॉपरली वर्किंग। ये तो पूरा प्रॉपर वर्क हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखा था इंपोर्ट रिएक्ट एंड नैव बार डालना। ओके, एंड बाद में यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट साइन अप करके एक क्रिएट करेंगे एंड ये एक फॉर्म के अंदर रहेगा। मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो आप एक डिफ़ॉल्ट सा एक कोड डालना। सो उस कोड के अंदर हम क्या डालेंगे, मतलब ये देखना यहाँ पे आप एक जैसे आप यहाँ पे एक कॉन्स्ट साइन अप करते हो, ब्रेसेस ओपन करते हो, तो उसके अंदर आपको क्या बोलते हैं, जस्ट एंटर एक H1 मेंशन करना, क्लास नेम एक बोल्ड फॉन्ट में साइन अप करना एंड डिव क्लास के अंदर मार्जिन डाल देना एंड इसके यहाँ पे एक क्या बोलते हैं लेबल डालना फुल नेम करके। इसके अंदर अभी इनपुट के अंदर हम क्या-क्या डाल रहे हैं ये सब मेंशन करना एंड बाद में इस डिव को क्लोज़ करो। एक और डिव ओपन करना ईमेल से एंड ईमेल के अंदर हमको क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया। प्लेस होल्डर आपको कोई और नाम चाहिए वो नाम आप एंटर कर लेना इसके अंदर। फिर फ़ोन नंबर का जो था ना वो आपको मेंशन करना है फ़ोन नंबर के बारे में एंड फ़ोन नंबर को यहाँ पे मेंशन कर लेना। ओके, एंड बाद में यहाँ पे एक हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये जो पासवर्ड था उसके बाद सेम एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इस पासवर्ड का भी मैंने प्लेस होल्डर डाला। ये ऑन चेंज इवेंट ही मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो बाद में मैंने यहाँ पे ये जो वो स्टूडेंट, अभी हमको एक बीच में एक क्वेश्चन आता है कि वेदर वो स्टूडेंट है कि रिक्रूटर है करके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेडियो बटन्स डाले थे कि वो स्टूडेंट होना चाहिए कि रिक्रूटर करके। तो ये दो मैंने इनपुट लेबल लिया था, यहाँ पे भी मैंने इनपुट के लिए लिया एंड यहाँ पे मैंने ये लेबल के अंदर स्टूडेंट डाला, इस लेबल के अंदर मैंने रिक्रूटर डाला एंड ये जो आपको यहाँ पे मैंने रेडियो ग्रुप क्लोज कर लिया था। अभी मुझे प्रोफाइल का भी डालना है ना, तो मैंने क्या किया, डिव क्लास नेम करके फ्लेक्स आइटम्स सेंटर गैप टू डाला एंड प्रोफाइल के अंदर मुझे इमेज चाहिए, फाइल चाहिए और यहाँ पे देखना क्लास नेम उसको कर्सर पॉइंटर में डाला। अगर कभी भी मैं उसको अगर क्लिक करती हूँ तो मुझे वो चेंज होना चाहिए करके एंड यहाँ पे मैंने डिफ क्लोज कर लिया था। ओके, ये सब मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया एंड बाद में मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया था कि सबमिट वाला बटन एंड उसके बाजू में वो सबमिट का नथिंग बट वो साइन अप है करके। ओके, आप चाहो तो सबमिट लिख सकते हो बट मैंने यहाँ पे साइन अप डाला था और यहाँ पे एक मैंने एक स्पैन क्रिएट किया था कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करके मैंने उसको मेंशन किया। उसके बाजू में मैंने एक लिंक के हिसाब से आई जस्ट मेंशन लिंक करके उसको मैंने लॉग इन करके डाला था। अभी हमने क्या क्या ये चीज़ें डिपेंडेंसी यूज़ किया था वो सब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। लेबल यूज़ किया था, इंपोर्ट इनपुट यूज़ किया था, रेडियो आई मीन ये ग्रुप हमने डाला था एंड बाद में बटन यूज़ किया था, लिंक एंड यूज़ नेविगेटर मैं आपको बताती हूँ ये टोस्ट कहता है और ये डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल किया था ना वो आपको बताऊँगी। तो यहाँ तक तो मेरा पूरा हो गया है। तो अभी मुझे क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड। अभी ये जो यहाँ पे था ना तो मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज स्टेट डालूंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़ स्टेट जो यूज़ कर रही थी ना तो मैं वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक नेविगेट यूज़ करेंगे। या नेविगेट का मतलब आपका जो नेम फॉर्म डाटा के अंदर अपेंड होना चाहिए, मतलब सेव। कभी भी हम जाके यूज़र के अंदर देख सकते हैं तो तभी हमको ये सेव हो रहा है करके आई मीन ये डाटा अपेंड हुआ है करके हमको पता चलना चाहिए ना। तो सबमिट हैंडलर के अंदर, ये चेंज इवेंट हैंडलर के अंदर, चेंज फाइल हैंडलर के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया था। तो यहाँ पे आप देखना इनपुट सेट इनपुट के यहाँ पे मैंने ईमेल पासवर्ड एंड रोल डाला था साइन अप के अंदर। सो ये सब फॉर्म डाटा के अंदर मुझे चाहिए करके मैंने मेंशन किया था। इफ़ अगर फॉर्म डाटा है अगर अपेंड होता है तो फाइल के अंदर ओके गुड, अगर कुछ एरर्स आते हैं तो ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे डाला था ये मल्टी पार्ट के लिए ये सब। ओके, सो आप ये मल्टी पार्ट के लिए हमें बैकएंड के लिए जाना है। मैं आपको वो बात बताऊंगी कैसे कैसे जाना है कहाँ करके। तो अगर यहाँ पे मैंने फिर से डाला था कि यूज़र जो डाटा है ना वो सक्सेसफुली नेविगेट होगा लॉगिन के अंदर तो वो रिस्पॉन्स डाटा हमको सेव होगा करके यहाँ पे हमने कैच एरर करके मेंशन किया था। सो ओके, तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करके हम एरर देख लेंगे अगर कुछ एरर आता है।
अगर कुछ एरर नहीं आता है तो हम डायरेक्टली अगर हमको कुछ एरर आता है तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के एरर डिफाइन किए थे। आप चाहो तो ये निकाल देना, तो इतनी अ, बात नहीं है, बट ये मैंने सेव किया था। अभी मैं लॉगिन के अंदर जाऊँगी, तो सेम मैंने लॉगिन के अंदर भी मैंने वही बटन्स यूज़ किए थे। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिफ़ॉल्ट कोड है, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ तक, एंड यहाँ पे आपका यूज़र एपीआई एंड पॉइंट ये लॉगिन पे लिखना, और ये साइन अप पे आएगा। ये देखना, वेट सेकेंड, एंड पॉइंट रजिस्टर पे आ रहा है, सॉरी नॉट साइन अप, रजिस्टर पे, मतलब वो रजिस्टर हो रहा है ना, साइन अप का नथिंग बट वो बंदा रजिस्टर हो रहा है हमारे यूज़र के अंदर, वो वेबसाइट के अंदर। ओके, सो नाउ इट इज़ एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। सो यहाँ पे हम इसके अंदर अगर ये ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ एरर्स आते तो हमको शो करेगा। अगर यहाँ पे हमने ना सक्सेस हो जाता है तो हमको रिस्पॉन्स डाटा मिलता है, कुछ एरर रहता है तो एरर मैसेज मुझे प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मैंने सेम क्या बोलते हैं, लॉगिन करते समय हमको क्या क्या चाहिए मैंने वो फाइल से क्रिएट किया था, एंड जो जो आप नैफ बार में मैंने किया था, कॉल कर रही हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद हम पूरा इसके अंदर डालेंगे लॉगिन के लिए। इसके अंदर हम लॉगिन के अंदर हम मेल, पासवर्ड, और हम क्या बोलते हैं वेदर ही इज़ अ स्टूडेंट और नॉट करके वो चेक करेंगे। स्टूडेंट है कि ये रिक्रूटर है करके हम यहाँ पे एक रेडियो रेडियो ग्रुप भी डालेंगे। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे देखना डिव क्लास के अंदर मेल, लेबल के अंदर मैंने ईमेल बोला, और इनपुट के अंदर मुझे ये सब डाटास मैंने एंटर किया था, और डिव क्लोज करने के बाद मैंने एक पासवर्ड का भी क्रिएट किया था, एंड सेम मैंने ये एक ऑप्शंस डालने के लिए भी डाला था। सेम कोड जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना, सेम वैसे ही कोड हम डाल रहे हैं यहाँ पे भी। ओके, तो उसके बाद हम डालने के बाद यहाँ पे रेडियो बटन्स डाल दिए मैंने, एंड यहाँ पे एक बटन डाला था मैंने सबमिट के लिए, मतलब लॉगिन हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो उस बटन को तो ये लॉगिन होता है करके। अगर ये आपको एक स्पैन वाला एक और है, और जस्ट अ सेकेंड, सो यहाँ पे भी, और ये देखना है यहाँ पे साइन अप किया है, अगर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट से लॉगिन हो जाना। अगर आपको ये जब लॉगिन करते हो आपको लॉगिन जब क्लिक करते हो बाय मिस्टेकली सो डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना साइन अप के। यहाँ पे साइन अप के यहाँ पे मैंने लिंक किया है ये वाला, तो अगर उस पर क्लिक करते हो तो आपको साइन अप वाला पेज दिखाई देता है। तो दिस आर द थिंग, सो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था मेरे अंदर। तो ये सब आप इम्पोर्ट फॉर्म्स देख लेना, ये सब अच्छे से, एंड ये सब देखना है। यहाँ पे मैंने अवतार डॉट जेएक्स डाला था, बटन डाला, इनपुट डाला, लेबल डाला। सो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कोड ही रहेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ वो भी। सो देखना है आपको एक डिफ़ॉल्ट कोड दिख रहा है, तो आप स्टॉप करके कॉपी कर लेना, नहीं तो मैं आपको मेरे इसके अंदर भेजती हूँ, तो उससे वहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट लेना है ना, नहीं पॉप ओवर से। सो उसके बाद मैंने देखना है, ये वाला, ये जो आपको देख रहे हो ना, ये इनपुट वाला, इनपुट डॉट जेएक्स वाले, ये आपको कहाँ से आते हैं मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मेरा कहाँ गया था ये वाले, इसके अंदर से मुझे यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत है। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये अवतार के बदले हमको अगर लेबल वगैरह कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कंपोनेंट्स के अंदर आप डालना ऐड लेबल करके क्लिक करना, तो आपको ये शो होगा, राइट, शोइंग मी। एक काम करते हैं, या दैट्स बेटर, एक मिनट में आ लेते हैं। सो या यहाँ पे आप जो जो भी चीज़ें चाहिए, तो मुझे ऐड लेबल मैंने डाउनलोड किया था, तो वो मुझे चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, तो मुझे ऐड लेबल डालती हूँ, एंटर करती हूँ, या लेबल था ना, तो ये जो लेबल है तो ये देखना, ये वाला आप कॉपी कर लेना। ओके, कॉपी करने के बाद आपको टर्मिनल में अगर जब पेस्ट करते हो तो आपके यूआई के अंदर ये लेबल आ जाता है। अगर आपको इनपुट चाहिए तो सेम आपको जहाँ पे इनपुट जहाँ पे लेबल था वहाँ पे आप इनपुट डाल देना। इनपुट सर्च करोगे तो आपको ये कोड आएगा। सो ये वाला जो कोड है ना, वो आपके टर्मिनल के अंदर जब भी आप डालते हो तो आपको इनपुट डालने के बाद आपको ऐसा वाला कोड दिखाई देगा, डिफ़ॉल्ट वाला कोड है, एंड प्लीज़ इसको डोंट चेंज इट। सो जब आप पॉप ओवर हमने इंस्टॉल किया था तो हमको ये वाला डिफ़ॉल्ट कोड मिला था, वैसे ही हम ये ग्रुप्स भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो जस्ट अ सेकेंड, एंड उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ कि कैसे हो रहा है हमारा।
तो उसके बाद मुझे क्या डाउनलोड करना था कि जस्ट सेकंड। सो ये देखना, यहाँ पे मुझे देखना डिफ़ॉल्ट है, ये कंफर्टेबल है और ये कॉम्पैक्ट है करके क्लिक हो रहा है। तो ये मुझे ये वाला का कोड कॉपी कर लेना। एंड यहाँ पे मुझे 2 ही ऑप्शंस चाहिए, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करके सेव कर सकते हो। तो फिर से आपके टर्मिनल में जाना, वो कमांड सेव करो, आपको आ जाएगा। अभी ये वाला हम कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो इसके अंदर आप जाना, जस्ट टाइप वॉट एवर द मेरे जेएक्स के अंदर दिख रहे हैं आपको, वो सब आप डालना, आपको मिल जाएंगे वो सब कमेंट्स। अगर ये शो टोस्ट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब लाइक इवेंट हैव बीन क्रिएटेड करके। सो ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये पॉपअप मैसेजेस है, देखना अभी मुझे जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ तब देख सकते हो कि कितने पॉप ओवर मैसेजेस आ रहे हैं। सो ये उसलिए हमने ये शो टोस्ट इसलिए हमने यूज़ करना। तो इसको हम डालेंगे एंड यहाँ पे हम एंटर करने के बाद टर्मिनल के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, इस टर्मिनल के अंदर एंटर करना, आपको ये डिफ़ॉल्ट जो टोस्ट था ना वो मिल जाएगा, टोस्टर वाला। तो अभी हम जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, तो ये पूरे देख, जस्ट अ सेकेंड, ये सब निकाल देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाना। होम निकाल देती हूँ एंड लॉगिन वाला निकालती हूँ। एंड यहाँ पे देखना, मैंने इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम यहाँ से किया था और ये हमने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल किया था। तो एवरी पैकेज इज इंस्टॉल्ड इन अवर टर्मिनल। तो आप ये चीज़ क्लियर रख लेना। आप पहले यूआई एक्स के अंदर, आई मीन जो यूआई के अंदर ये जो यूआई फोल्डर दिख रहा है ना, उसके अंदर आप प्लीज़ ये सब पैकेजेस इंस्टॉल कर लेना, जो जो भी मैंने यहाँ पे दिखाई थी ना वो सब पैकेजेस। अगर आप इंस्टॉल करने के बाद अगर मेरा कोड आप कॉपी पेस्ट भी करते हो तो आपको कुछ एरर भी नहीं आता है। ओके, और डायरेक्टली यू कैन टाइप इट। उसके बाद हम देखेंगे कि ये अभी कैसे रन होता है एंड इसके डिटेल्स कैसे देख सकते हैं। तो आप देखना यहाँ पे डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो कि पासवर्ड डाल सकते हो कि कुछ भी। ओके, एंड यहाँ पे स्टूडेंट करके क्लिक, जस्ट सेकेंड, स्टूडेंट करके क्लिक करना। इस लॉगिन नहीं होगा फिलहाल के लिए, हम पहले साइन अप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं ये डालूँगी मेरा नेम एंड आई जस्ट गेट माई नंबर। उसके बाद मैं सम श्री@12 डालूँगी एंड यहाँ पे स्टूडेंट डालूँगी एंड साइन अप डालूँगी। ओके, ये पॉप ओवर का मैसेज मुझे डालना है। सो इसके अंदर हम देखेंगे कुछ फाइल डाल देंगे, लाइक एक पीएनजी डाल रही हूँ, इट्स लाइक मैं यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पे एक मिनट साइन अप करेंगे। इससे पहले साइन अप क्यों नहीं हो रहा है, एक बार इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि ये कहाँ आप कहाँ से ये एरर से सब ले सकते हैं। तो इसके अंदर साइन अप का एरर दिखाई दे रहा है कि सबमिट हैंडल में आपने कुछ गलत कर दिया था। तो मैं आई विल रिसॉल्व दिस। सो फिलहाल आप यहाँ तक कर लेना आपके क्लास के अंदर। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डेड वीडियो हाउ वी कैन सी अवर डाटा इन दिस। ओके।